Jai Somnaran to everyone. Today we are going to learn chapter number 16 of Social Science in Standard 9. So friend, you can see here the title of the chapter, Climate. So friend, I hope you have a little bit information regarding climate, weather, because you have already learned it in Standard 8. So let us start our lesson here. Chapter 16, Climate. Climate is an average of atmospheric conditions over a long period. Generally, climate is determined from the average weather conditions of summer, winter and rainy season of a place for about 35 years or more. यानी कि किसी भी एक प्लेस की 35 इयर्स या उससे ज़्यादा समय की जो विंटर, समर और रेनी सीजन की जो वेदर कंडीशन है, तो उसकी एवरेज को देखकर जो वेदर कंडीशन निकाली जाती है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. इन शॉर्ट, क्लाइमेट इज एन एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन. यानी कि एक तरह से हम शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है तो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की एक एवरेज है कि जो कि लॉन्ग टर्म की है. वेदर इज एन एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर. जो वेदर है तो वो एटमॉस्फेयर की एक शॉर्ट टर्म की कंडीशन है. वेदर कैन चेंज एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ डे. Change in weather conditions depends on air temperature, air pressure, humidity, rain, fog, amount of clouds, etc. कि वेदर जो है तो वो दिन में ही वो बदल सकता है, यानी कि उसमें चेंजेस आ सकते हैं. और जो वेदर है तो किसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं, तो टेम्परेचर, देन एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, फॉग और जो क्लाउड्स है तो उसके ऊपर वेदर डिपेंड करता है. Weather affects our daily agricultural activities. Indian Meteorological Department publishes a daily weather map and a report of the entire nation. So friend, make underline for this sentence because this is the most important sentence. So Indian Meteorological Department publishes daily weather map and a report of our entire nation. यानी कि इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है तो वो हमारी कंट्री का जो डेली का जो वेदर है तो उसका रिपोर्ट जो है, उसका जो मैप है तो वो पब्लिश करते हैं. इंडिया शोज अ लार्ज डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. Seasons change in some parts of the earth according to the wind direction. We know that, friend, the diversity and the characteristics of our country, so it is very different, and according to the wind directions the seasons are changed in our country. So the winds which change their direction according to the season are called monsoon winds. यानी कि इस तरह से जो winds के कारण जो सीजन चेंज होते हैं तो उसके लिए हम उसको monsoon winds कहते हैं. These winds are so named after the Arabic word मौसम. यानी कि ये जो विंड्स का जो नाम आया है मॉनसून, तो वो एक अरेबिक वर्ड जो मौसम है तो उसके ऊपर से वो आया है. इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान and Myanmar are Asian countries which experience monsoon climate. So friend, here given the country's name where monsoon climate are experiences. Change of seasons, revolution of the earth around the sun and her axial tilt are major reasons for changes in seasons. So friend, the earth's revolution around the sun and her axial tilt, so these are two main reasons to change in the seasons. The axis of the earth is tilted at 23.5 degree and makes an angle of 66.5 degree with the orbit. यानी कि जो अर्थ की एक्सिस है तो वो 23.5 डिग्री तक वो टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है, जबकि उसकी जो ऑर्बिट है तो ऑर्बिट में वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है. सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट. यानी कि जो सीजन्स में चेंजेस आते हैं तो वो उसकी एक्सियल टिल्ट के कारण वो चेंजेस आते हैं, यानी कि वो जितनी झुकी है इसके कारण उसमें चेंजेस आते हैं.
Regions receiving more sunlight experience summer, while regions receiving less sunlight experience winter. यानी कि जो भी रीजन्स में ज़्यादा सनलाइट होती है तो वहाँ पे समर सीजन होती है, जबकि जो भी रीजन में सनलाइट कम होती है तो वहाँ पे विंटर सीजन एक्सपीरियंस होती है। Sunrays fall vertically over the Tropic of Capricorn on 22nd December, so the southern hemisphere experiences summer and the northern hemisphere experiences winter। कि 22nd दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी जो सनराइज है तो वो वर्टिकली उसके ऊपर गिरते हैं, तो उसके कारण जो सदर्न हेमिस्फीयर है तो वहाँ पे समर सीजन होती है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चलती है। Nights in India are longer and colder in winter. Similarly, the sun rays are vertical over the Tropic of Cancer on 21st June, so the days are longer। यानी कि जो इंडिया में जो नाइट्स है विंटर सीजन में तो वो ज़्यादा लॉन्ग होती है और कोल्ड होती है, और उसी तरह से जो सनराइज है तो वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वो गिरते हैं, और वो कौन सी डेट है तो 21 जून को, और इसी कारण वहाँ पे जो डेज होते हैं तो वो भी ज़्यादा लंबे होते हैं, यानी कि लॉन्गर डेज को हम एक्सपीरियंस करते हैं। Now friend, you can see here the position of the earth on 21st June and 22nd December. So friend, you can see here the Tropic of Cancer is in front of Sun on 21st June, whereas the Tropic of Capricorn is in front of the Sun on 22nd December. And according to that, the seasons are changed throughout the year. Rotation and revolution of the earth have a direct impact on the food, clothing, and residences of men. In monsoonal countries like India, the winter and summer monsoon winds, which change direction according to the season, affect the seasonal weather and give peculiar characteristics to the weather of every season. That is why the climate is called monsoonal climate. So friend, the rotation and revolution of the earth is directly affected to the food, clothing and residences of the men. And in the monsoonal countries as like in India, the wind's direction is changed during winter and summer season. And these are the peculiar characteristics of the weather of every season, and that is why the climate is called here monsoonal climate, और इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है तो उसको हम monsoonal climate कह सकते हैं। Variations in the climates of India. There are many variations in the climate of India. South India has a peninsular shape, hence it experiences moderate maritime climate, while the climate becomes more continental while going away from the seashore। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है तो वो वेरिएशन से भरा हुआ है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया का जो शेप है तो एक पेनिनसुलर शेप है, उसके कारण वहाँ पे जो क्लाइमेट है तो एक मॉडरेट क्लाइमेट है, जबकि जो सीशोर से उससे हम दूर चले जाते हैं या फिर उसके दूर के रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है तो एक कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। A large part of North India is away from the seashore, so it experiences continental climate। यानी कि इंडिया का जो ज़्यादातर जो पार्ट है तो वो नॉर्थ इंडिया में है, और उसके कारण वहाँ पे जो क्लाइमेट है तो एक कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वहाँ पे हम फील कर सकते हैं। The Tropic of Cancer passes almost through middle of India area to the south of it falls in torrid zone, while the area to the north of it is in temperate zone। We know that friend, the Tropic of Cancer it passes through middle of the India, and that's why those areas which are located in south, these are torrid zone, whereas those areas in north area or north region, these regions feels temperate zone। As a result, there is a large difference in the temperature and rainfall in different parts of the country। इसके कारण कंट्री के अलग अलग पार्ट में जो टेम्परेचर और जो रेनफॉल है तो वो हम अलग अलग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इन लेह एंड द्रास इन नॉर्थ ऑफ लद्दाख
is as low as -45 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। जैसे कि लेह और द्रास की बात करें कि जो लद्दाख में है, तो वहाँ पे विंटर सीजन के दरमियान जो टेम्परेचर है तो -45 डिग्री सेल्सियस जितना नीचा होता है। Sriganganagar and Alwar in Rajasthan record 51 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जबकि हम राजस्थान के श्रीगंगानगर और अलवार की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर समर सीजन में 51 डिग्री सेल्सियस जितना हाई रहता है। यानी कि दोनों में यहाँ पे हम ये डिफरेंस देख सकते हैं कि एक जो लेह और द्रास की जो नॉर्थ लद्दाख में है तो वहाँ पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है विंटर सीजन में, जबकि राजस्थान में कि जो हमारी ही कंट्री में है तो वहाँ का टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। Similarly, Cherrapunji in Meghalaya in East India gets about 1200 centimeter rainfall annually, which is maximum in the world. Mawsynram, about 16 km away from Cherrapunji, is famous for receiving maximum rainfall during 24 hours. कि चेरापूंजी जो है कि जो मेघालय में है तो वहाँ पे जो रेनफॉल होता है तो वो एनुअली रेनफॉल वहाँ पे 1200 सेंटीमीटर होता है और उसके 16 किलोमीटर दूर वहाँ पे जो मौसम का जो रीजन है तो वहाँ पे 24 आवर्स जो रेनफॉल होता ही रहता है। In the west, the deserts of Rajasthan receive only 10 to 12 centimeter rainfall annually. Contradicting climatic conditions are seen in our country. When one region has devastating floods, the other faces drought due to intense heat and scanty or absence or rainfall। कि यहाँ पे हम ये कॉन्ट्राडिक्टिंग देख सकते हैं कि जो ईस्ट में जो चेरापूंजी है तो वहाँ पे जो रेनफॉल होता है तो एनुअली रेनफॉल 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होता है, जबकि हम वेस्ट की बात करें राजस्थान में तो वहाँ पे जो रेनफॉल होता है तो वहाँ पे एनुअली रेनफॉल 10 टू 12 सेंटीमीटर ही होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है कि जिसके कारण कई इलाके ऐसे भी हैं, कई रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पे डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो है तो वो आते हैं, जबकि कई ऐसे भी रीजन है कि जहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन ज़्यादा रहती है। Some regions face devastating effects of thunderstorms, sandstorms, and tropical cyclones. Thus, seasonal weather has diversified effects. और इस तरह से जो सीजनल वेदर है तो वो हम अलग अलग इलाके में अलग अलग हम देख सकते हैं। Factors affecting the climate. There are some factors on the surface of the earth which control the distribution and amount of elements of climate. These are called climatic factors. Following factors affect the climate of India. So friend, here we will learn about the factors which affected to the climate. So first factor is here given, latitude. Climatic type on the surface of the earth changes according to the latitude of the place concerned. यानी कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का जो लैटिट्यूड है तो उसके मुताबिक वहाँ की अर्थ की सरफेस की जो क्लाइमेटिक टाइप डिसाइड होती है। There is a distance of about 111 kilometers between two successive latitudes. यानी कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है तो वो 111 किलोमीटर्स का वो डिस्टेंस होता है। Sun rays fall vertically over equatorial region, hence it is very hot throughout the year. कि इक्वेटोरियल रीजन में जो सनराइज होते हैं तो इक्वेटोरियल वो वर्टिकली वहाँ पे फॉल होते हैं, इसके कारण पूरे साल तक वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वेदर जो है तो वो हॉट होता है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एज लाइक टॉरिड जोन एंड टेम्परेट जोन। कि इंडिया जो है तो वो अलग अलग दो जोन में डिवाइड हुआ है, जैसे कि टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन में। Second number factor, distance from sea. The distance of landmass from sea is another important factor affecting the climate. Water and land have different capacity to absorb and release the solar heat. कि water और land दोनों जो solar heat को absorb करने की और release करने की जो capacity है वो दोनों में अलग अलग है। As a result, coastal regions experience temperate climate,
while the climate becomes continental in the interior places away from the sea coast. जैसे कि हमने देखा कि जो सोलर हीट को एब्सॉर्ब और रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वाटर और लैंड में, वो दोनों में डिफरेंट है। तो उसके परिणाम क्या होता है कि जो भी कोस्टल रीजन है तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है तो वो टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, जबकि जो सीशोर से यानी कि जो कोस्ट लाइन से दूर वाले जो इलाके हैं जैसे कि सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ पे जो एक कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हम महसूस कर सकते हैं। The climate of Mumbai in India is temperate as it is near the sea coast, while it is continental at Nagpur or Delhi, as these places are situated far away from sea. उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया गया है कि जैसे कि मुंबई जो है तो वो सीशोर से यानी कि कोस्ट लाइन से बहुत ही नज़दीक है, तो उसके कारण वहाँ पे जो टेम्परेट क्लाइमेट जो है तो वो वहाँ पे एक टेम्परेट क्लाइमेट है, जबकि जो नागपुर और दिल्ली जो है तो वहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो सीशोर से कोस्ट लाइन से वो दूर है। नाउ altitude from the sea level. As we go higher in the atmosphere from sea level, air pressure and air temperature decrease, while higher relief gets more rain. यानी कि जैसे जैसे सी लेवल से हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे जो एयर प्रेशर और एयर टेम्परेचर जो है तो वो कम होता जाता है, और उसके कारण कई बार वहाँ पे जो रेन भी होता है। ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड द हिमालयन पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, कि वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड के कारण हिमालय के ज़्यादातर जो पीक्स होते हैं तो वो स्नो कवर हुआ होता है। Moist air cools down when it rises and gives rain. With increasing altitude of the mountains in Meghalaya, the rainfall increases. कि मेघालय में जो माउंटेन्स की जो लेंथ है तो वो ज़्यादा होती है, इसके कारण वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा रहते हैं। In general, air temperature decreases 1 degree Celsius from the ascent of 165 meters or by 6.5 degrees Celsius for ascent of every 1000 meters from the surface of the earth. यानी कि 165 मीटर की हाई तक जो टेम्परेचर है तो वो 1 डिग्री सेल्सियस जितना वो डिक्रीज होता है, जबकि 1000 मीटर्स जितनी हाइट होती है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है तो वो 6.5 डिग्री सेल्सियस जितना वो डिक्रीज होता है। Atmospheric pressure and winds. India falls in the path of northeast trade winds. These winds originate due to tropical high pressure belt in northern hemisphere. कि ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर के कारण वो ओरिजिनेट होते हैं। दिस विंड्स डिफ्लेक्ट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटर, यानी कि ये जो विंड्स है तो वो कुछ फोर्स के कारण कोरियोलिस होते हैं, यानी कि वो थोड़े से क्रॉस होते हैं और वो वहाँ से इक्वेटर की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। इन पास्ट these winds were utilized for oceanic trade, so these are called trade winds। के एंशियंट टाइम में, पास्ट टाइम में ये जो विंड्स है तो उसका यूज ओशियनिक ट्रेड के लिए ज़्यादा होता था, इसलिए इस विंड्स को ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। As these winds blow over landmass, they contain less moisture। कि जैसे जैसे ये विंड्स जो है तो लैंडमास की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसमें जो मॉइस्चर है तो वो भी कम होता जाता है। द इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। Due to this vast water mass, the winds passing over them absorb moisture and bring rain in India। जैसे कि हम जानते हैं कि साउथ इंडिया में जो इंडियन ओशन है, वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि एक तरह से ये वाटर मास बहुत ही ज़्यादा है, इसके कारण वहाँ से जो भी विंड्स आते हैं तो विंड्स के साथ जो भी मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर आगे बढ़ता है, और ये मॉइस्चर के कारण ही इंडिया में जो रेनफॉल पॉसिबल होता है। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर डेवलप्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस, cold and dry winds from this region blow towards the oceanic area where low pressure is created। यानी कि विंटर सीजन में
नॉर्थ हिमालयस में जो हाई प्रेशर के कारण जो कोल्ड और ड्राई विंड्स जो है तो वो ओरिजिनेट होते हैं। जो आगे ओशनिक एरिया में आगे बढ़ते हैं तब तक उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ड्यूरिंग समर लो प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर ओवर सेंट्रल एशिया एंड इंडियन लैंडमार्क्स। जबकि समर सीजन में जो ये लो प्रेशर वाले जो एयर जो विंड्स होते हैं तो वो हाई टेम्परेचर में वो आगे बढ़ते हैं कि जो सेंट्रल एशिया और इंडियन लैंडमार्क्स में वो पर्टिकुलरली आगे बढ़ते हैं। At this time, high pressure prevails over Indian Ocean in south, so winds tend to blow from the high pressure over Indian Ocean to low pressure in North India. उस वक्त जो इंडियन ओशन जो साउथ में है तो वहाँ पे जो हाई प्रेशर ज़्यादा रहता है और ये जो हाई प्रेशर के कारण जो विंड्स वो आगे बढ़ती है तो उसके कारण जब वो इंडियन ओशन से वो निकल के जब नॉर्थ इंडिया की तरफ आगे बढ़ती है तब तक उसका जो प्रेशर है तो वो बहुत ही कम हो जाता है। These winds are known as southwest monsoon winds. They contain moisture and bring rain in India. ये जो winds है तो उसको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं और वो अपने साथ मॉइस्चर और रेन जो है तो वो इंडिया में लेकर आते हैं। Sometimes a peculiar phenomena takes place over places located far from India, which creates temporary changes in the long-term climatic pattern. कि कई बार कुछ जो फेनोमेना है तो वो भी ओरिजिनेट होते हैं कुछ जो कोस्टल एरिया के बहुत ही दूर जो प्लेसेस है तो वहाँ पे क्लाइमेटिक पैटर्न जो लॉन्ग टर्म से चले आते हैं उसके बावजूद वहाँ पे कुछ टेम्पररी चेंजेस होते हैं। Phenomena like jet stream, western disturbances, El Nino, ITCZ have affected the Indian weather to a great extent. जैसे कि कुछ नेचुरल कैलमिटीज जैसे कि जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अल नीनो, ITCZ की जिसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इस प्रकार के जो फेनोमेना है तो वो इंडिया में एमर्ज होते हैं। However, the monsoonal characteristics of climate of India remain unaffected. इसके बावजूद इंडिया की जो मॉन्सूनल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है तो उसको इतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं होता है। यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है तो वो मॉन्सूनल कैरेक्टरिस्टिक उसमें बहुत ही डिफरेंट होते हैं उसके बावजूद उसमें जो इफेक्ट होता है तो वो बहुत ही कम होता है।